Hello, everyone. Yesterday only we have studied that fixed system of exchange rate meaning. Fixed system of exchange rate is divided into two parts. That is gold standard system and Bretton Woods system. So it is a part of fixed exchange rate only. So gold standard system of exchange rate is an old variant of fixed exchange rate. Means this is the first method which was running in our country. In this system, all the things were measured in terms of gold. गोल्ड इज a मेन कॉमन यूनिट टू एक्सचेंज. जैसे आज अगर हमें $1 खरीदना है तो वी आर पेइंग दैट मच रुपी. दैट टाइम if you want to purchase the dollar, you have to pay the gold. So due to that, this system is called as the gold standard system. So each country have to define its gold value. हर country को अपनी currency को gold में measure करना पड़ता था. सपोज जैसे यूके ने डिसाइड करा मेरा 1 पाउंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है. यूएस ने कहा मेरा $1 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है. तो ऐसे हर कंट्री को अपनी करेंसी को गोल्ड में मेजर करना पड़ता था, जिसको मिंट पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं या मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. विच सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन गोल्ड. गोल्ड इज द मेन यूनिट एट दैट टाइम. क्लियर दिस ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ये 1944 में चालू था आईएमएफ के द्वारा, विच लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ, जिसके कारण आईएमएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. फिर क्लियर दिस सिस्टम. अब इस सिस्टम में क्या होने लगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी. गवर्नमेंट ने अगर कह दिया गोल्ड 1 ग्राम या 1 रुपी या $1 खरीदने के लिए इतना गोल्ड देना पड़ेगा, तो उस समय प्रॉब्लम आने लगी कि साल भर तक सेम रेट रहेगा. अगर सेम रेट रहेगा तो कंट्री को बहुत, अगर जो कंट्री बहुत फ़ायदे में है उसको बहुत फ़ायदा होगा, और जो कंट्री घाटे में जाने लगी है तो उसको घाटा ही घाटा होना लगेगा. तो इस सिस्टम में उनने परमिशन दी एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. इस सिस्टम में उनने इन द मिडल, if any government want to do the changes, what the government has decided, that only they want to change. So they are permitted to change, but first they have to take permission from the US. IMF will be giving them the permission, and IMF when giving the permission, then IMF will be saying that you have to कंपेयर योर करेंसी विद द गोल्ड. आप गोल्ड के अकॉर्डिंग ही ओनली आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यूएस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट परमिटेड. तो हमें यूएस की परमिशन, यूएस के डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपनी करेंसी को चेंज कर पाते थे, जिसकी परमिशन हमें आईएमएफ से मिली थी. तो इन द मिडल ऑफ द ईयर इफ एनी कंट्री वांट टू डू द चेंजेस इन देयर करेंसी रेट, so they can do. So that system is called as adjustable peg system of exchange rate. This system was abandoned in 1977 and it was replaced by a flexible. तो 1977 में ये सिस्टम बंद हो गया और उसके बाद आपका flexible exchange rate system चालू हो गया. So now it's clear what is gold standard and what is Bretton Woods system of exchange rate. They are the two types of fixed exchange rate. So fixed exchange rate, you are knowing where government is fixing all the rules and regulations. So that is fixed exchange rate. Fixed exchange rate is divided into two, that is gold standard and Bretton Woods. The gold standard was running before 1944 only. At that time, all the currency will be measured in the terms of gold. So, but rate is fixed for the whole year. So they want to change the rate in between of the year. So when they want to change the rate in the between of the year, so a new system was launched which is called as Bretton Woods system of exchange rate, or which is called as adjustable peg system of exchange rate. So here the whole nation will be compared with the US, and when US currency we have to compare, according to that only you can do the changes. So that is called as the adjustable peg system of exchange rate. Now it's clear to everyone? Okay. Starting on third type, that is managed floating. So in for our country, foreign currency are of three types.
फर्स्ट सिस्टम, थ्री सिस्टम. फर्स्ट सिस्टम इज फिक्स्ड, पहले चलता था. व्हेन फिक्स क्रिएट अ प्रॉब्लम देन फ्लेक्सिबल स्टार्टेड, और व्हेन देन फ्लेक्सिबल में चेंज प्रॉब्लम आने लगी तो थर्ड सिस्टम बना जिसको कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम. So managed floating system is that exchange rate where rate is fixed according to demand and supply only. मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी थी डिमांड और सप्लाई को, और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही रेट फिक्स हो रहा था. मगर बीच में अगर आरबीआई को लग रहा है कि नहीं ये रेट सही नहीं है, तो आरबीआई बीच में अपना इंटरफेरेंस कर रही थी. मतलब ये मिक्स सिस्टम था. प्राइवेट मतलब पहले डिमांड और सप्लाई का रोल चल रहा था, और जब डिमांड और सप्लाई का जो फाइनल रेट हुआ तो वो रेट अगर आरबीआई को सही नहीं लगा तो आरबीआई ने अपने हिसाब से चेंजेस कर दी. तो वो सिस्टम को कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग. अगर आरबीआई बस अपना फ़ायदा देखेगी, पब्लिक का फ़ायदा नहीं देखेगी और चेंजेस करेगी, देन इट विल बी अ डर्टी फ्लोटिंग. और अगर कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है बाय चेंजिंग द रेट, देन इट विल बी कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग. So now it is clear what is. So I am reading from the book. Listen it carefully. Even when exchange rate is determined by the forces of supply and demand. तो जब exchange rate demand और supply के according determine हो चुका है, at the time of central bank intervenes to manage the exchange rate. तो उस time पे central bank बीच में घुसकर अगर कुछ manage करना चाहती है तो she can, so that it does not slip out of the desired limit. तो जो आरबीआई ने सोचा है उस लिमिट से हम नीचे ना उतर जाए, तो it is called managed floating. Managed floating is a system in which there is an occasional intervention. तो यहाँ पे occasional intervention होता है by the central government. मतलब हर वक्त नहीं करती है, occasion में करती है और इसको float करती है, manage करती है. So it is also called as dirty floating. Now it's clear what is dirty floating, what is managed floating. Okay. So now how does central bank exercises its influence on the float or market exchange rate? मतलब central bank कैसे changes करती थी, float करती थी, तो कैसे वो floating लाती थी country में. So it is through the sale and purchase of foreign currency. या तो वो सेल करती थी या परचेज करने लगती थी फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में. व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस, जब अगर उनको एक्सचेंज रेट कम करना है, जैसे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग 70 हो गया और अब उनको 70 की जगह 60 करना है. सो व्हेन दे वांट टू एक्सचेंज द रेट, द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई. वो सप्लाई इंक्रीज कर देती थी. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ों को वही रहने देती थी. और अगर उनको प्राइजेस कम करनी है देन दे अप्रिशिएट द डोमेस्टिक करेंसी, तो वो करेंसी को अप्रिशिएट कर देती थी. सो ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड टू बी रेज्ड, जब एक्सचेंज रेट बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इट्स डिमांड, सेंट्रल बैंक डिमांड बढ़ा देती थी. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सो हायर डिमांड वुड रेज टू हायर प्राइस. तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है इस सिस्टम को. तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ fixed exchange rate and it is a mixture of flexible exchange rate. Now is it okay to everyone? Managed floating means, अभी मैंने समझाया जब सेंट्रल बैंक एंटर कर कर अपने हिसाब से चेंजेस करती है. तो अगर सेंट्रल बैंक को डॉलर का रेट कम करना है, तो जब उनको रेट कम करना है तो सेंट्रल बैंक सप्लाई बढ़ा देती है अपनी कंट्री से. सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो फॉरेन करेंसी कंट्री में आने लगेगी, प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी. अगर उनको डिमांड बढ़ानी है, अगर उनको ये एक्सचेंज रेट रेज करना है तो वो डिमांड बढ़ा देंगे. जब डिमांड बढ़ा देंगे तो फॉरेन करेंसी वाले लोग हमारी कंट्री में आकर गुड्स खरीदेंगे, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. सो दिस वे दे आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. मतलब कब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं और कब हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हैं. तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हैं, जब हम फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, या हम फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहे हैं, या अगर हम वहाँ काम करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी ही मिलती है. अगर हमने वहाँ से लोन लिया है तो हम उनका लोन वापस करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी ही देनी पड़ेगी. अगर हमें वहाँ से कोई सामान ख़रीदना है तो हमें फॉरेन करेंसी देकर ख़रीदना पड़ेगा.
या फिर हमें वहाँ पे स्पेकुलेशन ट्रेडिंग करनी है, मतलब जैसे वहाँ पे आईपीएल चल रहा है तो वहाँ के आईपीएल में तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या कहलाती है, स्पेक्यूलेटिव मार्केट। तो जब भी तुम्हें उन्हें की कंट्री में कुछ डीलिंग करनी होगी तो तुम्हें क्या चाहिए कि फॉरेन करेंसी। सो एज सेम दे हैव गिवन, फॉरेन करेंसी की डिमांड कब होती है, जब हमें इंटरनेशनल लोन वापस करना है, हमें फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है, हमें फॉरेन कंट्री से परचेज करना है, हमें अब्रॉड से परचेज करना है। अगर उनने हमें ग्रांट्स और डोनेशन दी तो उनने हमें इसी रूप में दी। फिर हमें वहाँ के लेबर्स जब हम लोग वहाँ काम करते हैं तो वो हमें इनकम देंगे तो उसी फॉर्म में देंगे। या फिर जो मैंने आईपीएल वाली स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग कही वो। तो बताइए, इनमें डाउट है? देन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, मतलब हमारी कंट्री में जब उन लोग आते हैं तो उन्हें हमारी कंट्री की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत होती है। तो कब कब इंडियन करेंसी की मनी की डिमांड होती है, जिसको हम सप्लाई कहेंगे। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हम जब माल बेचेंगे तो वो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी। या फिर वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो हमारे यहाँ से कोई सामान खरीद रहे हैं, या वो हमारी कंट्री की लोन वापस कर रहे हैं, या वो हमें ग्रांट और डोनेशन दे रहे हैं, या हमें हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे ही फॉर्म में इनकम मिलेगी, या ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो वो उनको हमारी कंट्री की करेंसी में करनी पड़ेगी। उसको कहा जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। आ गई बात समझ में? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। Is it okay? Okay. So now next topic is foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब वो जगह जहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग होती है। तो अब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ फॉरेन करेंसी की परचेजिंग और सेलिंग होती है। उस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन डीलिंग्स ही होती है, बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, एंड दे ऑल आर डीलिंग विथ फॉरेन कंट्री। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र फंक्शन। जैसे अगर आप एक, हम कह रहे हैं हमारी एक मार्केट बनी हुई है, आप सब अपन सब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लोग हैं, मेंबर्स हैं। अब अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं फॉरेन कंट्री में, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जब हमें फॉरेन करेंसी से गुड्स खरीदने पड़ेंगे तो हमें उनके पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तो वो किस फॉर्म में होगा? फॉरेन करेंसी फॉर्म में। क्रेडिट फंक्शन, अगर हमें लोन की ज़रूरत है तो हम लोन की ज़रूरत है तो हमें लोन लेंगे हम दूसरे नेशन से, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लोन दे देते हैं कि ये इस मार्केट के मेंबर्स हैं, इनको पैसों की ज़रूरत है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वालों को ये लोन भी मिल जाती है। हेजिंग फंक्शन, हेजिंग फंक्शन जैसे अब नए नए लोग आप हमारे कंपनी में एंटर होना चाहते हैं, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंटर होना चाहते हो, तो आप श्योर नहीं हो कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो उनको कम से कम श्योरिटी दे देते हैं कि तुम्हें कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। एक तरीके से गारंटी दिया जाता है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हेजिंग फंक्शन कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क, मतलब हमारे रिस्क को लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं कि आपको कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। सो फंक्शंस आर क्लियर? ओके, सो नाउ ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके से ऑपरेट होती है, एक है स्पॉट मार्केट जिसको करेंट मार्केट कहते हैं, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब जहां अभी ऑर्डर दिया और अभी ही आपको गुड्स मिल जाएंगे, उस मार्केट को कहा जाता है स्पॉट मार्केट। जैसे अपन बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में अपन पैसे देते हैं और सामान लेकर आ जाते हैं, तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने गुड्स दिए, ऑर्डर दिया और आपको गुड्स उसी समय अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो मार्केट को कहा जाता है स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? जैसे अपन एक तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर आज दे दिया है, गुड्स बाद में रिटर्न होंगे,
मगर रेट आज ही का होगा। तो ऐसे फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गुड्स की डीलिंग, ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं आज, मगर गुड्स की डिलीवरी होगी फ्यूचर में। तो सारी चीज़ों के रेट आज के होंगे, ना कि फ्यूचर के होंगे। तो उस मार्केट को कहा जाता है फॉरवर्ड मार्केट। Clear the difference between spot market and forward market. They have given more difference, so I am reading. Spot market में current transactions होती है, forward market में future related transactions होती हैं। Rate of spot market जो उस दिन होगा वही रहेगा। Rate of exchange determined in this market is called forward market. तो वहाँ पे जो rate fix होगा वो forward के लिए हो जाएगा, और यहाँ जो spot में ही होगा। It does not allow hedging. spot market में कोई risk bear नहीं करता, मगर फॉरवर्ड मार्केट में रिस्क भी साथ में बेयर हो जाते हैं। सो नाउ दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। Keep studying.